ابھی بیٹھ, کچھ کھا پی لے پھر جانا, میں نے تم سے ایک اہم بات بھی کرنی ہے. یہ سنتے ہی جگتار سنگھ بیٹھ گیا. اتنے میں اندر سے کھانے پینے کا سامان گرلین کور لے کر آ گئی تھی. وہ ٹرے میز پر رکھ کر انہی کے پاس بیٹھ گئی. وہ تینوں کھانے پینے لگے. اس دوران خاموشی چھائی رہی. تبھی جسپال نے جگتار کی طرف دیکھ کر کہا, سکھ قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے تم اسے اچھی طرح سے جانتے ہو. تقسیم ہند سے پہلے اور بعد میں جو لوگ پاکستان بن جانے کے بعد یہاں بھارت میں آئے تو اسی وقت سے ہی انہیں مجرم قبیلہ کہا جانے لگا. یہ سازش اس وقت سے تھی. پنڈت جواہر لال نہرو سردار پٹیل نے اس وقت کے گورنر پنجاب سی ایم تیواڑی سے مل کر کی. تب سے لے کر اب تک ان بغیرت ہندوؤں نے سکھوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. خیر, جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو. جی بولے بھائی جی. جگتار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق ایسی کوئی بھی قوم خود ارادیت کا حق رکھتی ہے جس کی اپنی کوئی تاریخ ہو یا جس کی اپنی کوئی مملکت قائم رہی ہو, اس کی اپنی سرزمین ہو اور ان کی اپنی الگ سے ثقافت ہو, جن میں اپنی مملکت چلانے کی صلاحیت ہو. خالصان تحریک چلانے والوں کا یہ دعویٰ ہے اور ہم اس دعوے میں حق بجانب ہیں کہ ہم دنیا کا 5واں بڑا مذہب رکھتے ہیں. ہم دنیا میں 3 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. بھارتی پنجاب میں ہماری سب سے زیادہ تعداد ہے. ان باتوں کی بنیاد بنا کر خالصان تحریک کا پھر سے مطالعہ کرو اور لفظوں کے ہتھیار لے کر نکل پڑو. پوری دنیا کے سکھوں تک یہ پیغام پہنچا دو, ہمیں اب خالصان حاصل کرنا ہے. بھائی جی میں سمجھ گیا. سیاسی اور سفارتی سطح پر اب میری ذمہ داری رہی. میں آپ کا ویژن سمجھ گیا ہوں. مجھے راستہ مل گیا ہے. اب اجازت دے بھائی جی. واہ گرو دا خالصہ, واہ گرو جی دی فتح. ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا, پھر اپنی قیمتی گاڑی کی جانب بڑھ گیا اور وہاں سے چلا گیا. اس سارے معاملے میں گرلین خاموش رہی. اس کے چاہتے ہی بولی, کیا یہ کر لے گا؟ ہاں, یہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتا لیکن لفظوں کی جنگ خوب لڑ سکتا ہے. جسپال نے سوچتے ہوئے کہا, پھر چونک کر بولا, اروند کی طرف سے کوئی خبر؟ ابھی تک تو نہیں. ادھر راہ کی طرف سے بھی گہری خاموشی ہے. گرلین نے کہا تو جسپال اٹھتے ہوئے بولا, گہری خاموشی میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. آؤ اندر چلیں, یہ وقت بڑا قیمتی ہے. جسپال اندر چلا گیا اور گرلین برتن سمیٹنے لگی. نیا پیراگراف. میں حویلی کی چھت پر کھڑا دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہا تھا. سڑک کے پار نور نگر اب بھی ویسا ہی تھا جیسے میرے بچپن میں ہوا کرتا تھا. کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی لیکن میں بہت حد تک بدل گیا تھا. انتقام کی آگ سے میرے سفر کی ابتدا ہوئی تھی جو نہ جانے کہاں سے کہاں ہو کر یہاں تک آن پہنچا تھا. اس دوران مجھے آگہی اور شعور نہ ملتا تو میں کب کا ختم ہو چکا ہوتا. میں انہی بھول بھلیوں میں کھویا ہوا تھا کہ اروند سنگھ کا فون ملا. وہ مجھے نیچے بلا رہا تھا. میں چند منٹوں میں اس کے پاس جا پہنچا. اروند خیریت ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا. کل سے لے کے آج صبح تک جو کچھ بھی ہوا اس نے ایک بار تو راہ کو ہلا کے رکھ دیا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. پورا زور لگا کر انہوں نے خبریں روکی ہوئی ہیں. کیا تم نے ان چینلز کو خبریں نہیں بھیجی تھیں؟ میں نے اسے پوچھا. قتل ہو جانے کی خبریں تو آ گئی ہیں لیکن یہ قتل کیوں ہوئے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتا رہے. خیر یہ دیکھیں. اس نے مجھے اسکرین کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا, کیا ہے یہ؟ میں نے پوچھا. یہ ایک لمبی ای میل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یعنی راہ والے ویرتا والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس نے بتایا تو میں نے کہا, مطلب ابھی انہیں کوئی واضح بات نہیں بتانی. اسے میری بات سمجھتے ہوئے کہا, تو کر لو بات. کہہ دینا کہ ابھی ایک لمبی فہرست ہے, انہیں ختم کر لیں تو مطالبات بھی بتا دیں گے. بالکل, ابھی ویرتا کی دہشت بن جانے دو. یہ دیکھو وہ ویرتا کو تلاش کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں, پھر بات بھی ہو جائے گی. میرے کہنے پر وہ سمجھ گیا اور کمپیوٹر پر مصروف ہو گیا. میں اس کے پاس سے اٹھ کر چل دیا. میں حویلی کے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا جہاں اماں اور سونی پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی. میں ابھی ان سے کوئی بات بھی نہیں کر پایا تھا کہ چودھری اشفاق آ گیا. اس نے آتے ہی کہا, وہ یار کچھ بندے ملنے آئے ہیں تمہیں. افضل رنداوا بھی ان کے ساتھ ہے. خیر تو ہے نا؟ کس لیے آئے ہیں؟
मैंने पूछा था वो कोई सियासी लोग हैं। उसने बताया तो मैं उठकर बैठ गया। बाहर लॉन में 3 बंदूक के साथ रंधावा बैठा हुआ था। मुझे देखते ही वो खड़े हो गए। तब अचानक मुझे वो दौर याद आ गया जब मैं घसीट कर थाने ले जाया गया था। मैं इनसे मिला और उनके पास ही बैठ गया। चौधरी इशफाक ने उनकी हादर तवाज़ा के लिए चाय के साथ लवाजमात भिजवाए थे। तारुफ पर मालूम हुआ कि वह हुकूमती पार्टी के लोग हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शन के बारे में बात करने आए थे। उनमें से एक बुजुर्ग नुमा बंदा ज़हूर मिर्जा था जिसे सारी बात की थी। आप हमसे क्या चाहते हैं? मैंने पूछा। जाहिर है हम आपकी सपोर्ट ही चाहेंगे। इस वक्त इस इलाके में आप ही का असर और रसूख है। हम अपने उम्मीदवार के लिए वोट चाहेंगे। उसने मुलायमत से कहा। तब मैं चौधरी इशफाक की जानिब इशारा करते हुए कहा, लेकिन मैं तो इसे एमएनए का इलेक्शन लड़ाना चाहता हूं। हम उम्मीदवार हैं। इस पर ज़हूर मिर्जा कुछ कहने लगा तो अफजल रंधावा उसे रोकते हुए कहा, नहीं जमाल, मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस पर नजरसानी करना होगी। पसे पर्दा खेल कुछ दूसरा है, सामने कुछ और है। मेरे ख्याल में तुम इसे इलेक्शन ही से बाहर कर दो या फिर कम से कम एमपीए तक महदूद कर दो। मैं समझा नहीं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, इतना समझ लो कि इस बार ये पार्लिमानी आदाब सीख जाए। अगली बार जैसे आप चाहो। किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना होने की जमानत देते हो? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। हर तरह की जमानत है। उसने एतमाद से कहा। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैंने कहा तो उन्होंने खुशगवार हैरत से एक दूसरे को देखा, जैसे इतनी जल्दी फैसला देने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। कुछ देर बैठकर वो चले गए। जाते हुए अफजल रंधावा ने दोबारा आने का कहा और वो लोग चले गए। मैं वापस अंदर आ गया तो अम्मा और सोहनी वहीं लाउंज ही में बैठी हुई थी। मेरे पीछे ही चौधरी इशफाक आ गया। मैंने उसे अपने पास सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम्हें समझ आई है ये लोग यहां क्यों आए थे इस किस्म की बात करने? रंधावा तो मुझे कई दिनों से कह रहा था, लेकिन मैंने उसे एक ही बात कही थी कि वो तुमसे बात कर ले। मैं अपने तौर पर कोई बात नहीं करूंगा। मैंने इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना है, इसका फैसला जमाल ही ने करना है। चौधरी इशफाक ने बड़े सुकून से कहा। कौन लड़ रहा है इलेक्शन? अचानक अम्मा ने हमारी तरफ देखकर पूछा तो मैंने बाहर लोगों के आने के बारे में उन्हें एहतसार से बता दिया। चंद लम्हे सोचती नहीं, फिर बोली, ये इशफाक ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। उन्हें कहो वो जिसे चाहे अपना उम्मीदवार बना ले। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? ये बाहर के मामलात हैं, इनके बारे में आपको क्या पता? मैंने काफी हैरत से पूछा, क्योंकि अम्मा ने पहले कभी भी बाहर के मामलात में मुदाखलत नहीं की थी। ऐसा पहली बार हो रहा था। ये इशफाक यहां होगा तो इलेक्शन लड़ेगा। मैं इसे लंदन भेज रही हूं, तानी के पास। अम्मा ने पुरसकून लहजे में कहा। क्या? ये फैसला कब हुआ? मुझे बताया ही नहीं। मैंने फिर पूछा तो अम्मा ने उठते हुए कहा, क्या तुझे हर बात बताना जरूरी है? नहीं, मगर ये बात। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए सोनी से बोली, सोनी पुत्र बता दे इसे। ये कहकर वो बाहर की जानिब चली गई। उसके पीछे ही चौधरी इशफाक उठकर तेजी से बाहर चला गया। तब सोनी मेरे करीब आकर बैठ गई। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने अपनी नशीली आंखों से मेरे चेहरे पर देखते हुए बड़े प्यार से कहा, तुम्हें नहीं पता ये इशफाक बहुत पहले से तानी के साथ इश्क की हद तक प्यार करता है? क्या? मैंने खुशगवार हैरत से कहा, जी हाँ, ये अपने दिल ही दिल में इससे प्यार करता रहा, लेकिन इजहार इसलिए नहीं किया कि शायद तुम इससे बहुत मोहब्बत करते हो और मुमकिन है इससे शादी भी कर लो। इसलिए इसने अपनी ख्वाहिश जबान पर नहीं लाई, यहां तक कि वो लंदन चलेगी। अब जबकि तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है तो एक दिन ऐसे ही इसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उसके ख्याल में यही है कि अब तानी वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। इस पर अम्मा ने यह फैसला कर लिया कि चौधरी इशफाक और तानी की शादी कर दे। क्या तानी इस पर राजी है? मैंने पूछा। हाँ, वो राजी है। अम्मा ने उससे तफसीली बात कर ली है। वो 1 और 2 दिन में यहां आ रही है। उसकी शादी यहीं होगी और आगे का सारा जो प्रोसेस है वो तुम देख लेना, या फिर तानी खुद देख लेगी। सोनी ने मुझे तफसील बताते हुए कहा।
चलो ये तो खुशी की बात है, उसकी जिंदगी में भी बहार आ जाएगी। सोहनी, शायद तुम नहीं जानती कि वो एक स्पार्ट और तन्हा जिंदगी गुजार रही है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। मैं काफी हद तक जज्बाती हो गया था। एक बात कहूं? सोहनी ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। बोलो। मैंने यूं ही कहा, अगर तुम तानी से शादी कर लेते ना, तो मुझे जरा भी हैरत ना होती। मैं मानती हूँ वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। वो तुमसे इश्क करती थी। मैं जानती हूँ कि इश्क करने वाले ही जान दिया करते हैं। उसने तुम पर अपनी जान वार दी थी। मैं समझती हूँ कि अम्मा इसीलिए उसे अपने खानदान का हिस्सा बना लेना चाहती हैं। वो इंतहाई जज्बाती अंदाज में एतराफ कर गई। तो मैंने उसके चेहरे पर फैली हुई लट को दुरुस्त किया और बोला, तुम हो सोहनी। मेरे यूं कहने पर वो एकदम से मुस्कुरा दी और फिर उठकर तेजी से बाहर चलेगी। मुझे मालूम था कि वो सीधी अम्मा के पास जाके ही रुकेगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चौधरी इशफाक को तानी से मोहब्बत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें जज्बात नहीं थे। सोच इसलिए सकता था कि कभी उसने इशारे कनाए से भी अपनी चाहत का इजहार नहीं किया था। तानी की खूबसूरती पर कोई भी फिदा हो सकता है। पहली निगाह में कोई ये कह ही नहीं सकता था कि वो अंदर से इतनी सख्त है जितनी वो नाजुक दिखाई देती थी। अब जबकि मैंने उसे काफी हद तक देख लिया था, उसके साथ ने तानी बारे बहुत कुछ समझा दिया था। कभी कभी मुझे लगता कि वो जो कलोपत्रा की तरह दिखाई देती है, जिस तरह कलोपत्रा के छोटे छोटे बाल, लंबी नाक, गोल चेहरा, खा जाने वाली पुरकशिश आंखें, उसका तराशीदा बदन, देखने में एक हसीन तरीन औरत, लेकिन अंदर से वैशी, दरिंदा सख्त। वैसे ही तानी देखने में कुलपत्रा जैसी, फर्क रंग का था। तानी बहुत सफेद थी, गुलाबी सिंदूर मिली रंगत वाली। और दूसरी बात, उसे खुद पर मुकम्मल काबू था। मैंने उसे कभी बहकते हुए नहीं देखा था। वो अम्मा की बात नहीं टाल सकती थी, लेकिन असल सवाल ये था, क्या वो भी चौधरी इशफाक को कबूल कर सकती है दिल से? ये एक ऐसी बात थी जो सिर्फ मैं ही टटोल सकता था, वरना कोई दूसरा उसके दिल की बात नहीं जान सकता था। मैं वहीं बैठा रहा। तानी बारे मजीद सोच मेरे जहन में न आई तो मेरा जहन वीरता की तरफ चला गया। मैं इसका अंजाम सोचने लगा। ये बिल्कुल पानी के बुलबुले की मानंद बात थी। अगर बात जम जाती तो फिर ऐसी जमने वाली थी कि इसका असर देर तक रहने वाला था। और अगर सामने वाले इस खेल को समझ गए तो मैं ऐसे फूंक ही काफी थी। मुझे अरविंद सिंह की जहानत पर शक नहीं था, लेकिन उसकी पै दर पै कामयाबियों के पीछे सिर्फ एक बात थी। उसने भारतीय इदारों से सीखा था और वो जानता था कि वो कैसे काम करते हैं। अगरचे ये बात उसके खिलाफ भी जा सकती थी, लेकिन उसने वो तरीकाकार बदल लिया और हैकिंग की दुनिया में अपना ग्रुप बनाकर तहलका मचाए हुए था। वो दूसरों के लिए काम करता था और उनसे काम भी लेता था। वो मेरे साथ सिर्फ एक मकसद के लिए वफादार था और मैंने उसे तहफ्फुज दिया हुआ था, और सिक्की के लिए उसने अपना आप वक्फ कर दिया हुआ था। अब तक एक भी ऐसा अमल सामने नहीं गुजरा था जिसमें कोई भी शक पैदा होता। मैंने वीरता बनाकर एक बहुत बड़ा काम कर दिया था जिसके पीछे बहुत कुछ छुप सकता था। जिस दिन सरदार सरजीत सिंह बंदयाल ने जसपाल सिंह को अपने यहां बुलाकर हालसा की जिम्मेदारी सौंप दी थी, उस दिन से मेरे जहन में भी वो ख्याल वाज़ेह हो गया जो न जाने कब से मेरे जहन में था। मैं जानता था, मैं चाहता तो कर्नल सरफराज और रोही वालों के साथ मिलकर ऐसा ही कोई ग्रुप बना सकता था, लेकिन उनके पास तो अपना सारा सेटअप था। फिर मैंने क्या किया? मैंने इस मामले में अरविंद और फहीम से बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि वीरता का हालिया मामला खत्म हो जाए तो फिर इनसे बात करूं। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि मेरा सेल फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा, कोई अजनबी नंबर ही था। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानब से जो बोला मैं उसे पहचान गया। तुमने हमारे परिंदे आजाद नहीं किए, इसलिए अब हमारी दुश्मनी तो बन गई ना? उसने धमकी आमेज तंज से कहा तो मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, तुम अपनी कहो, क्या कहना चाहते हो? तो फिर सुनो, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, हमारे परिंदे आजाद कर दो, वरना मैं इतने ही धमाके करूंगा जितने मेरे परिंदे हैं।
फिर मुझसे शिकवा नहीं करना कि ये मैंने क्या कर दिया। इस बार उसके लहजे में गुस्सा आ गया था। यार, मुझे एक बात बताओ, तुम तो कहते हो कि तुम्हारी पहुंच बहुत दूर तक है, तुम अपने परिंदे आजाद करा लो। मैंने इस पर तंज किया। अगर वो कैद में भी मर जाएं तो मुझे कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं कि तू क्या करता है। उसने कहा, मुझे देखने का मतलब है तुम्हारी मौत। अपनी दुनिया तक महदूद रहो, यही अच्छी बात है। मैंने उसे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी मौत का सामना करूं। मैं मौत का सामना करना चाहता हूं। उसने दबे दबे जोश से कहा, तो मैं समझ गया कि वो मेरा आमना सामना चाहता है। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं उसकी आवाज रिकॉर्ड कर चुका था। मैं उठा और अरविंद के पास चला गया। वो सभी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। वहां मुकम्मल खामोशी थी। मैं एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया तो अरविंद ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, राह के बड़ों का इजलास हो चुका है। एक तरफ वो वीरता के मुतालबात मानने को तैयार हैं और दूसरी तरफ अपने हैकर्स लगाकर वीरता तलाश कर रहे हैं। मैंने भी यही बहाना बनाकर उन्हें जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ठीक किया। अगर हो सके तो जब तक इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है करो। जसपाल से कहो थोड़ा मजीद दबाव डाले, फिर देखते हैं क्या करना है। मैंने कहा तो उसने सर हिला दिया। फिर चंद लम्हों के बाद बोला, मैंने मेल कर दी है, रोनीत उसे बता देगी। ओके। अब ये एक आवाज है, इसे देखो। ये बंदा चंद दिनों से धमकियां दे रहा है। अभी अपना काम करो, जिस वक्त फ्री होना तो इसे तलाश कर लेना। मैंने उसे अपना सेल फोन देते हुए कहा। उसने वो आवाज अपने कंप्यूटर में डाल ली तो अपनी कुर्सी घुमाकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस पर भी जरा गौर करें और इसका नतीजा क्या होगा ये भी सोचना है। बोलो, क्या कहना चाहते हो। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा। इस वक्त आगरा भारत के एक अस्पताल से फारिग होने वाले दो भाई शमसुद्दीन और कमरुद्दीन इंतहाई कसम पुरसी की हालत में पड़े हुए हैं। उनके इर्द गिर्द सख्त पहरा है। मेरा ख्याल है उन्हें मार दिया जाएगा या फिर उन्हें किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये यहां क्यों और ये सब। मैंने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं बता रहा हूं ना, उसे तेजी से कहा और एक लम्हा सांस लेकर कहता ही चला गया। दरअसल ये दोनों भारतीय मुसलमान हैं और आगरा ही के रहने वाले हैं। तकरीबन 10 बरस पहले ये पढ़ने के लिए अमेरिका के शहर होस्टन चले गए। कंप्यूटर की तालीम के साथ साथ ये बहुत बड़े हैकर्स भी बन गए। ये इस कदर शार्प माइंड थे कि पिछले 3 बरस से इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे थे। इनका असल ख्वाब था कि ये चीन चले जाएं, जिसके लिए ये भरपूर कोशिशें भी कर रहे थे। इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन सिर्फ दौलत के लिए। इनके अलावा इनका कोई मकसद नहीं था। मैंने 1-2 काम इनसे लिए हैं और ये जो आवाज वाला सॉफ्टवेयर बनाया है, ये इन्हीं की मदद से बनाया था। इब्तदाई काम इन्हीं से शेयर किया था। तकरीबन 1 माह पहले इन्हें यकीन हो गया कि ये पकड़े जा सकते हैं। इन्हें पकड़ने वाले में एक भारतीय लड़की का हाथ था जो खुद भी हैकर थी और नई नई राह के लिए काम करने लगी थी। अमेरिकन को इन पर पहले ही शक था। इन्होंने इन दोनों को घेर लिया। 2 हफ्ते तक ये अमेरिकन तशद्दुद का शिकार रहे, यहां तक कि ये दोनों मरने वाले हो गए। इन दोनों ने तशद्दुद तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। बड़ी बात है जो इन्होंने मुंह से कुछ नहीं निकाला। फहीम ने हैरत से तबसरा किया। इल्जाम क्या लगाया था इन पर। मैंने पूछा। इल्जाम इन पर यह लगाया गया था कि ये दोनों चूंकि मुसलमान हैं और दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, और इन्होंने ये तफ्तीश की। चूंकि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था, किसी दहशतगर्द की मदद नहीं की थी, सो इन पर यह इल्जाम साबित नहीं हो सका, तो इन्हें छोड़ दिया गया। और फिर इल्जाम एक भारतीय लड़की ने लगा दिया जो खुद सामने नहीं थी। फिर फहीम की तरफ देखकर बोला। वो बोले इसलिए नहीं कि उन्होंने सोच लिया था कि अगर उन्होंने झूठ में इकरार कर लिया कि इन दहशतगर्दों से ताल्लुक है, तो फिर सारी जिंदगी यहां से नहीं निकल सकते, इन्हें मरना ही पड़ेगा। इन दोनों ने यह फैसला कर लिया कि अगर जिंदगी चाहिए तो मुंह बंद रखना होगा। यार, इनका तशद्दुद बड़ी बात है। फहीम ने इंस्पायर होते हुए कहा।
और बात बताऊं कि इन्हें अलग अलग रख कर भी तफ्तीश की गई थी। अरविंद सिंह ने बताया। वाह, तो फिर वो भारत कैसे वापस आ गए? वहां किसी अस्पताल में इन्हें क्यों नहीं रखा गया? पास बैठे हुए फहीम ने तेजी से पूछा। एक तो वहां पर इन दोनों भाइयों के दोस्तों ने इंसानी हकूक की तंजीम से राब्ता किया, उनसे मदद ली। दूसरा, वहीं पर मौजूद भारतीय लाबी ने उनके लिए कोशिशें की। इल्जाम साबित नहीं था, सो अमेरिकन ने तो छोड़ दिया, लेकिन भारतीय राह ने इन दोनों का अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए इनको मुंतहिब कर लिया। वो दोनों भाई इंतहाई हस्ता हालत में थे। वो चाहते थे कि अगर वो मरे भी तो कम से कम अपनों के दरमियान में मरे। सो उन्होंने वापस भारत आना ही पसंद किया, जिस पर राह ने पूरी दिलचस्पी ली और इन्हें आगरा ले आए। अब वो वहां के एक बड़े से निजी हॉस्पिटल से कल ही फारग हुए हैं। उन पर सारा खर्चा भी वो राह के एजेंट कर रहे हैं, जो बज़ाहिर उनके हमदर्द हैं। ये जो तुमने पूरी कहानी सुनाई, इसका मकसद क्या है? इसे जरा फैसले पर बैठी महविश ने पूछा। किसी भी तरह उन दोनों को भारत से निकालकर यहां लाया जाए, या किसी ऐसी भी जगह जहां वो महफूज हो जाए। अगर वो हमारे लिए काम ना भी करें तो कम से कम राह के लिए ना करें। वो बड़े काम कर सकते हैं अगर उनसे काम लिया जाए तो, लेकिन इससे भी हटकर वो मेरे दोस्त हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये लफ्ज कहते हुए अरविंद सिंह बहुत जज्बाती हो गया। तभी मैंने कहा, तुम्हारा कोई राब्ता है उनके साथ? फहीम ने पूछा तो वो बोला, यार राब्ता है ना, तो मुझे पता है ना। वो खुद भी यही चाहते हैं कि वो वहां से निकल आए। ओके, तुम एक काम करो, उनके बारे में बताओ कि वो कहाँ हैं। कोई कोड उनके साथ तय करो। उन्हें बताओ कि हम उनके लिए कुछ करते हैं। मैं देखता हूँ। ये कहते हुए मैं उनके पास से उठकर आ गया। नया पैराग्राफ। रोनीत कुंवर और जसपाल सिंह आमने सामने बैठे हुए थे। वो अरविंद सिंह को पैगाम दे चुकी थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी और वो दोनों ही इस पर सोच रहे थे। थोड़ी देर के बाद बानीता कुंवर भी उनके पास आ गई, तो रोनीत ने उसे भी बता दिया। तो वो तबसरा करते हुए बोली, देखो, अगर हम ये समझे कि हम राह को खत्म कर देंगे तो ये अभी नामुमकिन है। इस वक्त हमारा उनसे मुकाबला है, उसके पीछे एक हुकूमत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे डर जाएं, बल्कि हमने उसे डराना है। फिलहाल हमें इन्हें यही तासर देना है कि वो हम तक नहीं पहुंच सकते और हम जो चाहे कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी कि इन्हें ये तासर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए कि ये खालिस्तानी लोग हैं। फिर वो अपनी तवज्जो इसी पर मरकूज कर लेंगे। रोनीत कुंवर ने अपना ख्याल दिया तो जसपाल सिंह मुस्कुराते हुए बोला, ये जो कुछ भी होना है, कुछ करेंगे तो ही होगा। होना तो करने से ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस कदर मोहतात हुआ जा सकता है उतना मोहतात रहें, ताकि हमने टारगेट लेना है जो उसे पूरा कर सकें। वनीता कंवर ने अपनी राय दे दी। असल मसला तो यही है ना कि हमारा टारगेट क्या है। फिलहाल तो इतना ही है ना कि राह को डराया जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि हम उनके लिए किसी आजाब से कम नहीं। रोनीत कंवर ने समझाने वाले अंदाज में कहा, तो फिर सीधी सी बात है, राह के लोगों को निशाना बनाया जाए। वो पंजाब में जहां कहीं भी हो, एकदम से उन्हें ताकत का एहसास दिलाया जाए। तो मेरा ख्याल है हम उन्हें अपनी हर बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। वानिता कुंवर ने पुरजोश लहजे में कहा, ऐसा ही करना है, और ये कोई एक दिन की बात तो नहीं, इसमें वक्त लगना है। जसपाल ने कहा तो इसी वक्त नूतन कुंवर उनके पास आकर बैठते हुए बोली, सुनो जमाल ने एक काम करने का कहा है जो फौरी हो जाना चाहिए। कैसा काम? जसपाल ने पूछा। 2 लड़कों को किसी महफूज मुकाम पर रखना है और फिर इन्हें जमाल के पास पहुंचाना है। नूतन ने तफसील बताई। वो बंदे रखेंगे कहाँ? पंजाब में होते तो कोई मसला नहीं था, जसपाल ने कहा। तो वानिता ने कहा, हो जाएगा, तुम प्लान करो करना क्या है। फिर तुम ही करो प्लान, जसपाल ने कहा। ओके, मैं देखती हूँ, तुम अपना काम देखो। ये कहकर वो उठ गई। उसने अपने हाथ साथ नूतन को भी उठा लिया था। नया पैराग्राफ। शाम ढल रही थी। सूरज की सुर्खी मगरबी उफक पर छाई हुई थी। ऐसे वक्त में आगरा शहर की सड़क गुलाब नगर रोड पर बेतहाशा रश था। इस रश में एक सियाह जदीद मॉडल की 4 व्हील
भी फंसी हुई थी। इसमें 2 सिख नौजवान बैठे हुए थे। उनके पाँव में जदीद पिस्टल पड़े हुए थे। एक ड्राइविंग कर रहा था और दूसरा सामने देख रहा था। वो सामने दाएं जानब महात्मा गांधी लिंक रोड को देख रहे थे, जहां से मुड़ने के बाद इन्हें आगरा के मशहूर जीके अस्पताल जाने के लिए एक छोटी सड़क पर मुड़ना था। उनका राब्ता शमसुद्दीन और कमरुद्दीन से हो चुका था। दरमियान में सिर्फ 5 मिनट का वक्फा था। शमसुद्दीन और कमरुद्दीन ने चेकअप के लिए अस्पताल आना था। अब इनका चेकअप हुआ नहीं था। उनके साथ भारतीय इंसानी हकूक की तंजीम के 2 लोग थे, जो असल में रा के एजेंट थे। मुमकिन है उनके इर्द गिर्द भी लोग हों। ये सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने प्लान बनाया था। जैसे ही उनका चेकअप के लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो उनके साथ वो 2 लोग नहीं थे। डॉक्टर ने इन्हें देखा और तसल्ली बख्श करार दे दिया। ताहम उन्होंने एक डॉक्टर से दरखास्त की कि टेस्ट लिख दें ताकि कोई शक ना रहे। डॉक्टर ने वो टेस्ट लिख दिया। उन्होंने डॉक्टर से दरखास्त की थी कि टेस्ट लिख दें ताकि कोई शक ना रहे। डॉक्टर ने वो टेस्ट लिख दिया। इन दोनों भाइयों को पता था कि लेबोरेटरी किस तरफ है। उन्हें वहां तक जाना था। जाहिर है उनके साथ और लोग भी थे। इस लेबोरेटरी से जरा फासले पर एक छोटा गेट था जो महात्मा गांधी लिंक रोड पर खुलता था। यही वो नजदीक तरीन जगह थी जहां से वो इंतहाई कम वक्त में बाहर निकल सकते थे। अगर उन्हें 1 से 2 मिनट लग जाते तो वो वहां से निकलने में कामयाब हो सकते थे। ये सब कुछ कंप्यूटर पर तय हुआ था। इनके पास सेलफोन नहीं थे जिससे वो बाहर किसी से राब्ता कर सकते थे। इनके साथ वाले इसलिए भी इतने मोहतात नहीं थे। वो दोनों भाई लेबोरेटरी के पास पहुंच चुके थे। बिलाशुबा टेस्ट के लिए इन्हें अंदर ही जाना था और इसके बाद रिपोर्ट का इंतजार भी करना था। वो दोनों अंदर चले गए। उन्होंने टेस्ट करने वाले शख्स को बताया ही नहीं कि वो वहां पर क्यों हैं। अगर कोई पूछता कि वो क्यों खड़े हैं तो वो बता देते। कमरुद्दीन बाहर देखने लगा। उनके साथ आए हुए दोनों बंदे बाहर ही खड़े थे। कुछ ही देर गुजरी तो वो साथ में पड़े हुए बेंच पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने दरवाजे की ओर से बाहर देखा, फिर कॉरिडोर में आ गए। वहां से उन्हें देखा नहीं जा सकता था। वो तेजी से बाहर निकले और गेट तक जा पहुंचे। सामने ही इन्हें स्याह 4 व्हील खड़ी थी। उन्होंने निशानी ये तय की हुई थी कि ड्राइवर साइड के शीशे के साथ सब्ज रंग की धज्जी बंधी हुई होगी और वो कोई भी गाड़ी जो भी ऐसी नजर आएगी उसमें बैठ जाएंगे। वो दोनों तेजी से उस 4 व्हील की जाने बढ़े। उन दोनों भाइयों की तस्वीरें इन सिख नौजवानों ने देख ली हुई थी। उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया। इनके बैठते ही 4 व्हील चल दी। उन्होंने तो नहीं देखा, लेकिन ड्राइवर ने ये देख लिया था कि 2 बंदे हवनको की तरह तेजी से बाहर निकलकर इधर उधर देख रहे थे। उन्हें ये पता चल गया था कि वो दोनों भाई भाग चुके हैं। हमें शहर से बाहर निकलना है या यहीं शहर में रहना है? शमसुद्दीन ने पूछा। देखो, हमें इन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन इन्हें पता चल गया है कि तुम लोग फरार हो चुके हो, सिख ड्राइवर ने बताया। तो शमसुद्दीन फौरन बोला, अब क्या होगा? मेरे जहन में 2 तरह के प्लान हैं, तुम फिक्र ना करो। अब तुम अपने आप को महफूज समझो, ड्राइवर ने कहा और पूरी तवज्जो सामने देखकर ड्राइविंग पर लगा दी। वो महात्मा गांधी रोड पर आ गया था और यही सड़क इन्हें आगरा शहर से इंतहाई तेजी के साथ शहर से बाहर ले जाने वाली थी। लेकिन इसी सड़क पर इतना ही खतरा था। यहां उनके पकड़े जाने के ज्यादा इम्कानात थे। वो थोड़ा सा आगे जाकर सड़क के बाएं जानब उतर गया। अगरचे शहर की भूल भुलैयों वाली गलियों और सड़कों से निकलना मुश्किल और दिक्कत तलब था, मगर महफूज था। रात के पहले पहर वो शहर से बाहर निकल चुके थे। उन्हें एक छोटे से गांव में ठहरना था, जहां अपना गेटअप तब्दील करके वो पंजाब का रुख जा सकते थे। अगरचे ये 7 घंटे का रास्ता था, ताहम वो महफूज जगह पहुंच जाने वाले थे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।